हे गाइस, इस डॉक्टर शरुण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद डेली बायोलॉजी लेक्चर्स एंड सून वी विल बी स्टार्टिंग विद डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज एज वेल. We are doing the digestion and absorption chapter right now based on the weightage of the various biology units. Human physiology has the highest units, hence we have started with it. I hope these lectures you are finding them helpful, and if you are finding them helpful, do share it with your friends and other NEET aspirants as well. So without wasting much time, let's get started with our lecture for today. This is Dr. Sharon here. So what all we have covered, we have already covered what digestion means, what are the major components, what are the minor components, and why do we require digestion, कैसे कैसे होता है digestion, by the process of mechanical as well as the biochemical method or the physiological method. Fine. उसके बाद we have discussed about the alimentary canal and the glands and associated glands. Today we have to mostly focus on associated glands of the digestive tract, और उसके साथ साथ digestion कैसे होता है उसमें focus करेंगे. एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा देन यू कैन गो थ्रू द वीडियोस. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या इस प्लेलिस्ट में आपको वो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे. सो जस्ट स्टार्टिंग विद द टुडेज टॉपिक. सो आज का टॉपिक हमारा है द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो हमने बताया एलिमेंट्री कैनाल में आपको ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस में ख़त्म होता है. माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग, एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग. सो इस पूरे के पूरे ट्रैक्ट में फ्रॉम माउथ बक्कल कैविटी टिल लार्ज इंटेस्टाइन देयर आर नंबर ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का रोल क्या है? ग्लैंड्स हैव सेक्रीशंस. ये सेक्रीशंस आपके फूड के डाइजेशन में कहीं पे रोल प्ले करेंगे, कहीं पे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेंगे. सारे के सारे ये ग्लैंड्स जो भी आपके सेक्रीट कर रहे हैं secretions, they play a very significant role. So starting with the oral cavity में we have salivary glands. So digestive glands associated with the alimentary canal, they include your salivary glands, your liver and your pancreas. These are the three major digestive glands that are associated with the alimentary canal. इसके अलावा छोटे छोटे glands भी होते हैं, but these are the major three glands. Starting with the oral cavity, saliva is produced by three pairs of salivary glands. So we are talking about three pairs, मतलब left side में होगा, right side में होगा. तो ये कौन कौन से पेयर है? We have the parotids, we have the submaxillary and we have the mandibular glands. So parotid की बात करें तो इस डायग्राम में सिर्फ एक साइड का दिखाया गया, ऐसा ही दूसरी साइड भी होगा. So we have the parotid gland that you see. This is the present on the cheeks. Fine. Then we have मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के नीचे, ये रहा सब मैंडिबुलर ग्लैंड. फाइन ऑन दिस डायग्राम. अगेन लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में होगा. एंड फाइनली वी हैव द सब लिंगुअल. नाउ लिंगुअल मीन्स टंग. फाइन. सो सब लिंगुअल मतलब इट इज बिलो द टंग. सो दीज थ्री पेयर्स ऑफ salivary glands are present that secrete saliva. These glands, they are situated just outside the buccal cavity and secrete salivary juice into the buccal cavity. Now what is the function of the salivary juice? ये digestion of food में आगे मैं बताऊंगा. But remember three pairs of salivary glands, parotid gland, the submandibular and sublingual. sub मतलब नीचे, sublingual और tongue के नीचे, submandibular मतलब mandible के नीचे, and parotid are in cheeks. Second gland of interest is liver. Now liver, it is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.6 in an adult human. What is the location of liver? It is located in the abdominal cavity just below the diaphragm and it has two lobes. So अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और उसमें आपको लिवर का लोकेशन दिखाऊं, then see, this is your lobe of diaphragm, just changing the color of the ink. This is your diaphragm and this is your liver just below the diaphragm in the abdominal cavity, and as you can see it has two lobes that you can see over there. So location of the liver is located in the abdominal cavity just below the diaphragm and it has two lobes. Hepatic lobules are structural and the functional unit of the liver, containing hepatic cells that are arranged in form of cords. Now again, important point over here, what is the functional and the structural unit of liver? It is the hepatic
lobules. So hepatic lobule is the structural and the functional unit of the liver. What we are not talking about the hepatic cells. Obviously hepatic cells are what make up the pura liver, but functional unit अगर आप बात करोगे तो they are hepatic lobules. So basically hepatic lobules are hexagonal structure like this. पूरे लिवर में ऐसे स्प्रेड होते हैं. फाइन, ऐसे ऐसे करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जो पूरा लिवर में स्प्रेड होता है. दे आर योर हेपेटिक लोब्यूल्स. एंड हेपेटिक लोब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस. अब यहाँ पे भी कुछ ब्लड के वेसल, एक हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन एंड योर बाइल डक्ट, उसका एक कॉमन पाथवे. यहाँ पे तीन वेसल्स जारी होती है. एवरी कॉर्नर हैज़ 3 वेसल्स दैट इज ट्रैवलिंग एंड देन देयर इज सेंटर में सेंट्रल वेन. And that is your hepatic lobule, which is the structural and the functional unit of liver. Each lobule is covered by thin connective sheath called as the Glissen's capsule. Remember this, lobule की covering क्या है? Lobule की covering is Glissen's capsule. Hepatic cells का function क्या है? Hepatic cells के बहुत सारे functions है. liver का बहुत सारे function है. There is synthetic function of liver, there is excretory function of liver, there is filtration function of liver. So उसमें से one of the function is secretion of bile. Bile secreted by the hepatic cells, they pass through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called as the gallbladder that you can see in the diagram. So अगर diagram में आपको liver दिखाऊं, so liver would be something like this. अभी अगर diagram में liver दिखाया था, so these are ducts that are coming from the liver. They will carry the bile. कुछ बाइल आपका डायरेक्टली डिओडनम की तरफ आ जाता है, कुछ बाइल आपका बाइल डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाता है. नाउ व्हाट इज खास अबाउट गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर इज अ थिन मस्कुलर सैक एंड गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ बाइल. स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल इज फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. सो द कैच ओवर हियर इज the bile, it is not secreted in gallbladder, it is just stored and concentrated in gallbladder. Bile is secreted by the liver. The duct of the gallbladder, which is called as the cystic duct, along with the hepatic duct, they form liver. From the liver they form the common bile duct. So if you see in the diagram, so these are the hepatic duct. Fine, एक आ जाएगा right, एक आ जाएगा left hepatic duct. यहाँ से आया आपका bile duct या cystic duct. उसके बाद दोनों ने मिलके हमारा बनाया कॉमन बाइल डक्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको आगे बताऊंगा कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को एक स्फिंक्टर गार्ड करता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो उसके बारे में आगे बताऊंगा. लेकिन अभी क्या बताया मैंने? लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, दोनों किसके साथ जाके मिले? सिस्टिक डक्ट या डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड दे मेड द कॉमन बाइल डक्ट. Now the common bile duct and the pancreatic duct, they open into duodenum as the hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called as sphincter of Oddi, जिसकी मैं आपको बताने वाला था, जिसकी मैं बात कर रहा था. So if you see in the diagram, left, right, hepatic duct, I, cystic duct के साथ मिले, common bile duct बनाया. कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आते हुए पैनक्रियाटिक डक्ट से मिला एंड उन्होंने बनाया हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट. नाम से पता चल रहा है. हेपाटो मतलब जो लिवर से आ रहा है, पैनक्रियाटिक मतलब जो पैनक्रियास से आ रहा है. हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू डिओडनम. और इसकी ओपनिंग इनटू द डिओडनम इट इज गार्डेड. दिस ओपनिंग इनटू द डिओडनम यहाँ पे इट इज गार्डेड एंड इट व्हाट गार्ड्स इट? इट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ Oddi. Remember this name, sphincter of Oddi. ये बहुत बार पूछा जाएगा. What is the location of sphincter of Oddi? The location of sphincter of Oddi is the junction of the duodenum with the hepatopancreatic duct. So जहाँ पे hepatopancreatic duct is opening into the duodenum, उस part में we have sphincter of Oddi. Now why I am saying you have to remember sphincter of Oddi because इससे पहले हमने दो sphincter की बात की है. We have talked about our gastroesophageal sphincter and we have talked about our pyloric sphincter. Now both of these they tell about the location of the sphincter. But sphincter of Oddi के नाम से आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि लोकेशन क्या है. इसीलिए आपको sphincter of Oddi का लोकेशन भी याद रखना है. दैट इज द जंक्शन ऑफ duodenum with the hepatopancreatic duct.
And with that, we come to the third most important gland of the digestive tract, that is your pancreas. अब pancreas की दो तीन खास चीज़ें. सबसे पहले तो pancreas is a compound gland. What is a compound gland? Compound gland means it has both exocrine as well as endocrine part. So glands, they can be of three types. Exocrine, endocrine and compound. So your exocrine gland, ये सारी ग्लैंड की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करा रहा हूँ. सो फॉर नाउ रिमेंबर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे हैव डक्ट्स फर्स्ट. सेकेंडली, their secretions are non-hormonal. Non-hormonal secretions are exocrine gland का secretions. Endocrine glands do not have duct, so they release their secretion into blood. They are ductless, and their secretions are mostly क्या? All of their secretions are hormones. Now another interesting thing is endocrine glands, their secretions are going to blood. So exocrine gland के secretions कहाँ जा रहे हैं? Their secretions are going to a lumen, मतलब किसी एक cavity में जाएगा exocrine gland का secretion. And finally we have compound gland. Example is pancreas, where we have exo plus endo, both the components. Exo वाला component of pancreas क्या secrete करता है, endo वाला component of pancreas क्या secrete करता है? Exo वाला component will secrete pancreatic juice which is alkaline. Alkaline क्यों होता है? अल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स होते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनना, काइमोट्रिप्सिन बनना, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनना, ऑल दिस अकर्स इन अल्कलाइन नेचर. सो पैंक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन. एंड व्हाट डज द एंडोक्राइन पार्ट सेक्रीट? द एंडोक्राइन पार्ट सेक्रीट्स हार्मोन्स, एंड इसमें से टू इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज योर इंसुलिन. वन इज योर इंसुलिन एंड नेक्स्ट वन इज योर ग्लूकागॉन. फाइन. Coming back to pancreas, it is a compound gland, compound elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum. Fine. So if you see the duodenum, ये आपका है C-shaped या U-shaped duodenum, और इन दोनों के बीच में है, जैसा मैंने बताया था, pancreas. तो exocrine जो मैं बता चुका हूँ, exocrine portion of pancreas secretes alkaline pancreatic juice and contains enzymes, while the endocrine portion secretes hormones, insulin and glucagon. So those are all your glands, and इसके साथ हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया. ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं. एक जहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, एक जहाँ पे फंक्शन के बारे में बताया गया. तो हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड खत्म हो गया. मतलब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल, ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सब के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, जिसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल मैं बहुत बार बता चुका हूँ. मास्टिकेशन ऑफ फूड, चर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टमक, पेरिस्टाल्सिस, ऑल दीज आर योर मैकेनिकल प्रोसेसेस. केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल जो भी हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GI ट्रैक्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज योर chemical process. Starting with the first part of the alimentary canal, that is your buccal cavity. Now buccal cavity, it has two major functions to perform. First is mastication of food, then it facilitates in swallowing. Now what is mastication? Mastication is chabana. So simply biological term of chabana is mastication, and similarly biological process of swallowing या निगलना is deglutination. Fine. Now teeth and tongue, they play an important role by helping in mastication, in which saliva also plays a role, and the mixing up of food thoroughly occurs. Finally, there is something called as bolus is formed, because the mucus in the saliva, it helps in first lubricating and secondly adhering. Adhering मतलब चिपकाना. So जो भी आपने चबाया उन फूड पार्टिकल्स को आपस में चिपका के एक बोलस बनेगा, एंड इस बोलस को आप निगलने वाले हो थ्रू द फारिंग्स इनटू द esophagus. So starting with mouth. माउथ में हमारे पास दो चीज़ हैं,
एक्चुअली 3 चीज़ हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड्स। फाइन। अब teeth and tongue they will together carry out the process of mastication and forming of bolus. Your salivary glands, they secrete saliva and saliva has 2 roles. एक तो enzymatic role है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोलस। फॉर्मेशन ऑफ बोलस में एक और सब्सटेंस का रोल है, दैट इज योर म्यूकस। फाइन। सो योर सलाइवा, योर म्यूकस and your teeth and tongue all together work to form bolus. So what is bolus? It is basically a masticated food. Bolus is nothing but masticated food stuck together. मतलब एक दूसरे के साथ चिपका दिया है। Fine, that is what your bolus is. So basically आपने क्या किया, आपने माउथ में फूड डाला, जो भी था, चावल था, रोटी था, चिप्स था, पिज़्ज़ा था, बर्गर था, जो भी था आपने माउथ में डाला, माउथ में हुई उसका मैस्टिकेशन। तो जो आपने बड़ा सा एक बाइट लिया था पिज़्ज़ा का, वो छोटे 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 छोटे, सो बड़ा सा बाइट था, वो छोटे 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 पार्ट्स में टूट गया बिकॉज ऑफ द च्यूइंग इफेक्ट। फाइन। अब मैस्टिकेशन के साथ साथ आ जाएगा आपका सलाइवा एंड म्यूकस। ये क्या करेंगे, जो मैस्टिकेटेड फूड है इनको आपस में चिपका देंगे। ये आपस में चिपक गया। अब चिपकने के बाद जो म्यूकस है, इट हैज़ सेकेंड रोल, इट लुब्रिकेट्स इट। सो ऐसे एक बाहर म्यूकस का लेयर बन जाएगा एंड इट बिकम्स वेरी वेरी स्मूथ। वेरी वेरी स्मूथ होने की वजह से ये निगलने में आसानी होगी। फाइन। सो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो आपके माउथ में हुआ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये तो हो गया आपका। सेकेंड पार्ट आता है, द बोलस पासेस डाउन टू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सो दीज आर सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको, सबसे पहले आपको याद रखना, इट्स अ सक्सेसिव वेव, मतलब एक वेव आके रुक नहीं जाता, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, एक के बाद आता रहता है। इट्स अ सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। फाइन। सो हमने यहाँ पे बनाया था बोलस। अब ये बोलस क्या होगा, आपका ईसोफेगस। ये है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस में फूड आया, दिस इज वेल फॉर्म्ड बोलस, एंड इसके अंदर आपके छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। फाइन, जो बोलस बना हुआ है। अब पेरिस्टाल्सिस होगा बोलस का, सो क्या होगा, ऐसा कुछ वेव बनेगा। कैसा वेव है ये? तो बेसिकली जिस पार्ट में फूड है वो रिलैक्स्ड है, उसका ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड उसका नीचे वाला पार्ट फिर से रिलैक्स करेगा। फाइन। सो इसकी वजह से फूड आपका नीचे की तरफ पुश होता रहेगा। अगेन एपिग्लॉटिस कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया। तो जो बोलस बना है वो सबसे पहले एपिग्लॉटिस के ऊपर जाएगा, उसकी वजह से एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा। तो जैसे एपिग्लॉटिस बंद होगा, लैरिंग्स बंद हो जाएगा। लैरिंग्स बंद होते आपका फूड सीधा जाएगा ईसोफेगस में। And the opening of the esophagus into the stomach is called as gastroesophageal sphincter. तो gastroesophageal sphincter आराम से खुलेगा और खुलते आपका स्टमक में खाना चला जाएगा। Now there are different diseases in which this gastroesophageal sphincter malfunctions. Malfunctions मतलब गड़बड़ हो जाता है, इसमें नॉर्मल काम नहीं करता। Now this is not given in NCERT, so you guys can note it down. Fine. So gastroesophageal sphincter का malfunction can be two things. Either tone of the sphincter increases or tone of the sphincter decreases.
टोन डिक्रीज होगा तो क्या होता है, तो आपका होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। क्यों? मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक कंटेंट इज वेरी एसिडिक, गैस्ट्रिक कंटेंट एसिडिक होता है, उसकी वजह से आपका ईसोफेगस खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट ऑफ द एसिड। फाइन। सो GERD में क्या होगा, जो आपका एसिड है स्टमक का वो ईसोफेगस में आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, योर ईसोफेजियल लाइनिंग या एपिथेलियम ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेजियल लाइनिंग, the esophageal lining, it gets damaged. Fine. And it is known as what? Barrett's esophagus. Second, the tone might increase. अब tone increase होगा तो क्या होगा, tone increase होगा तो आपका क्या हो जाएगा, खाना आप नीचे नहीं swallow कर पाएंगे। सो क्या होगा यहाँ पे, अगर tone increase हो गया, food will remain in esophagus. Now if food remains in esophagus क्या होगा, आप वो swallow नहीं कर पाएंगे। So difficulty in swallowing occurs if the tone of the gastroesophageal sphincter is increased. Next, the saliva secreted into the oral cavity contains a lot of things. कौन कौन सी चीज़ें होती है आपको याद रखना है। Electrolytes, fine. कौन से 4 इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट पूरी की पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, 2-3-4 चीज़ें, बट ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये चारों के चारों इलेक्ट्रोलाइट आपके सलाइवा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इट हैज़ एंजाइम्स, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। So what is salivary amylase? Salivary amylase is an enzyme that helps in digestion of the carbs, carbohydrates, starch specifically. So जैसा मैंने आपको बताया, it is a carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. What was the old name of salivary amylase? इससे भी वो पूछ सकते हैं। तो old name of salivary amylase is Ptyalin, Ptyllin. So if they ask which of the following enzymes is present in saliva, and they said Ptyalin as one of the options, and वहाँ पे salivary amylase नहीं mentioned है, so Ptyalin is the correct answer. Fine. So carbohydrate splitting enzyme Ptyalin या salivary amylase is present in saliva that helps in digestion because of its hydrolytic activity. Over here, 30% of the starch, it gets hydrolyzed here by this enzyme. Works at the optimum pH of 6.8. So basically आपको ये reaction याद रखना है, starch getting converted to maltose by enzyme salivary amylase at pH of 6.8. Now एक और चीज़ है सलाइवा में हमारे पास, लाइसोजाइम। And what is the function of lysozyme? Acts as antibacterial agent that prevents infection. So completing the list of your saliva and saliva के functions. Yeah. So saliva का मैंने बताया formation of bolus, enzymatic action and antimicrobial action. Antimicrobial action किससे? लाइसोजाइम से। फाइन। एंजाइमेटिक एक्शन क्या है? सलाइवरी एमाइलेज काम क्या कर रहा है? 30% ऑफ स्टार्च को इट इज कन्वर्टिंग टू व्हाट? maltose. Right? So remember, maltose is a disaccharide forming from starch that happens in by salivary enzyme in your oral cavity. So your chemical, so if question asks where does the chemical process of digestion starts, so it is in mouth, not in esophagus, not in stomach, in mouth. Where does mechanical process of digestion start? It is also in mouth. Mechanical process of digestion again in mouth. Mouth से खाना कहाँ जाएगा? Mouth से the food will go to stomach. So our next organ of interest where we are going to study about the digestion of food कि क्या क्या होता है is your stomach. Now important thing about stomach. Stomach has glands in its mucosa, which is very common because most of the glands are in mucosa, and these glands are called as gastric glands. Now gastric glands, they have main 3 type of cells, और ये तीनों type of cells along with the secretions आप लोग को याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए. So first is your
म्यूकस नेक सेल, दिस इज एन ईजी वन, नाम से पता चलता है व्हाट डज इट सेक्रीट, इट सेक्रीट्स म्यूकस. फाइन, बट यहां से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज योर पेप्टिक सेल्स. नाउ पेप्टिक सेल्स से भी नाम पता चल जाएगा, बट दे आस्क इन क्वेश्चंस चीफ सेल्स. सो चीफ सेल्स क्या सेक्रीट करते हैं, इट सेक्रीट्स पेप्सिनोजेन. नाउ द ट्रिक ओवर हियर अगेन इज पेप्सिनोजेन पे हाईलाइट करना है. सो इट सेक्रीट्स अ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. पेप्सिन कभी भी सेक्रीट नहीं होता, क्यों? क्योंकि पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. अगर पेप्सिन एज पेप्सिन सेक्रीट होगा तो जो सेल सेक्रीट करी उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देगा. इसीलिए चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स दे सेक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. दे डू नॉट सेक्रीट पेप्सिन, दे डू नॉट सेक्रीट ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, HCl, कुछ भी सेक्रीट नहीं करते. दे जस्ट सेक्रीट पेप्सिनोजेन. फाइन. And finally, the parietal cells or the auxentic cells, they secrete what? They secrete HCl and intrinsic factor. Now, important thing again, what is intrinsic factor? Intrinsic factor is a small chemical, yeah, I can say it's a factor which is essential for absorption of vitamin B12. So obviously question ऐसा आता है कि derive करने वाला question है अब ये. Which of the following diseases can happen if a person lacks intrinsic factor? Or which of the following diseases can happen if the auxentic cells of a person, of a patient is damaged? And options में आ जाएगा आपका anemia, jaundice, ऐसे ऐसे करके 2-3 ऑप्शंस और दे देंगे वो. तो बेसिकली रिमेंबर, इंट्रिंसिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ RBCs, बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ DNA, RBCs. DNA RBCs में भी होता है. फाइन. So when replication of cell doesn't occur, what happens? Your RBCs they keep destroying, but नए RBCs नहीं बनेंगे. So that will result in that will result in anemia. So 3 type of cells in stomach. Mucus secreting cells, auxentic cells, या peptic cells, chief cells. Chief cells also known as peptic cells. Auxentic cells are also known as parietal cells. All these are present in your mucosa. And what do they secrete? Mucus secreting cell secretes mucus, or the neck cells secrete mucus. Auxentic parietal cell secretes HCl and intrinsic factor. And your chief cells or peptic cells, they secrete your pepsinogen. इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या कैच बताया मैंने? इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी. इंट्रिंसिक फैक्टर deficiency causes anemia. कैसे cause करेगा anemia? Because intrinsic factor helps in absorption of B12 and B12 plays a role in replication of cells. Replication of RBCs क्या इन जनरल सारे सेल्स, बट क्योंकि RBCs सबसे जल्दी चेंज होते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी आपकी दिखेंगी और अनीमिया बन जाएगा आपको. फाइन. सो नाउ द फूड विल मूव, चेंजेस दैट हैपन टू द फूड इन स्टमक. फर्स्ट विल डिस्कस दैट. सो स्टमक में द फूड इज स्टोर्ड फॉर 4 to 5 hours. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिमेंबर, बिकॉज आप अगर मॉर्निंग में नाश्ता खाओगे तो बाय द टाइम यू हैव योर सेकेंड मील इन 4 to 5 hours लेटर लंच में, इट मीन्स आपका ब्रेकफास्ट अभी भी स्टमक में ही है. इट हैज़ नॉट इवन गॉन टू योर इंटेस्टाइन. टू रिमेंबर, स्टमक में जो भी चीज़ें होंगी इट टेक्स टाइम अबाउट 4 to 5 hours. So for 4 to 5 hours the food is going to stay in stomach. Now food mixes thoroughly with the gastric juice which is acidic of the stomach by churning movement of the muscular wall and forms chyme. Fine. So basically जो आपका बोलस आया था, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्स काइम. फाइन. बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस क्या बना? काइम बना. नाउ
the proenzyme pepsinogen, it gets activated into pepsin on exposure to hydrochloric acid. So जब भी आपका स्टमक में पूछता है कि एसिडिक कंटेंट नेसेसरी क्यों है, it is because activation of pepsinogen requires acidic media. Now this is completely opposite of what happens in your intestine. The pancreatic enzymes, they require alkaline media. So duodenum में अगर alkaline media नहीं होगा तो आपका pancreatic enzymes activate नहीं होगा और digestion नहीं होगा. इसीलिए the pancreatic juice is alkaline in nature to just neutralize the stomach का acidic chyme, so that एक बार पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन हो गया, उसने अपना काम करते, उसके एसिडिक मीडिया की ज़रूरत नहीं है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके फिर पैनक्रेटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे. द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स. अगेन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. नाउ ये तो हो गया आपका पेप्सिनोजन का काम. पेप्सिनोजन जो पेप्सिन बना, फिर उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया. What is the role of the mucus and the bicarbonates? Mucus जो आपके neck cells secrete कर रहे थे, mucus secreting cells, and bicarbonate जो secrete हुआ, उसका role क्या है? So basically the mucus and the bicarbonate that are present in the gastric juice, they play an important role in first lubrication of the mucosal epithelium. Mucosa को प्रिवेंट करना है एक्सकोरिएशन से. एक्सकोरिएशन क्या है? बेसिकली जब आपका एसिड जलाता है उसको हम बोलते हैं एक्सकोरिएशन. सो क्योंकि HCl है, HCl इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो सेक्रीट होता है वहाँ पे एट अ pH ऑफ 1.8. सो 1.8 के pH में वो कुछ भी जला सकता है. इट कैन एक्सकोरिएट एनीथिंग. सो टू प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथीलियम, एपिथीलियम इज जस्ट द लाइनिंग. सो ल्यूमेन की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ल्यूमेन इज द कैविटी, फाइन, दिस इज द ल्यूमेन. ल्यूमेन की लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस है, एंड ये ल्यूमेन की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा. सो होगा कुछ ऐसा. सपोज ये आपका एपिथेलियम लाइनिंग है ऑफ योर स्टमक, फाइन. ये आपके एपिथेलियल लाइनिंग, म्यूकोसल एपिथेलियम लाइनिंग का सेल्स है, फाइन, राइट. नाउ दिस एंड इज योर कैविटी, या फिर यू कैन से ल्यूमेन, जहाँ पे खाना आएगा, एंड इसके नीचे फिर आ जाएगा आपका सब म्यूकोसा, फिर आ जाएगा मस्कुलरिस एंड वो सारी लेयर्स, मस्कुलरिस लेयर एंड सेरोसा लेयर, फाइन. सो होगा क्या कि जो म्यूकस होगा वो ऐसा एक लेयर बना देगा, फाइन. और जो बाइकार्बोनेट्स होंगे वो H+ को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, फाइन. एक बाइकार्बोनेट एक H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा. और ये सारा रिएक्शन सेल के बहुत पास हो रहा है. अब जो एंजाइम्स पेप्सिनोजन सेक्रीट किया है वो है सेल से दूर. सो यहाँ पे होगा कहीं पे पेप्सिनोजन, सर्कल अगर पेप्सिनोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर योर पेप्सिनोजेंस, फाइन. सो ये पेप्सिनोजन आपका इस न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट से दूर है. तो पेप्सिनोजन पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट से पेप्सिनोजन दूर है, तो यहाँ पे आपके HCLs होंगे, HCl के एसिडिक मीडिया होंगे, H+ आयंस होंगे सारे के सारे. और ये H+ आयंस आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोएंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट करेगा. लेकिन ये H+ आयन आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसके लिए यहाँ पे एक म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की लेयर बन जाएगी ताकि आप सेल्स को प्रोटेक्ट कर सको. सो दैट इज द रोल ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स. सो आपको पेप्सिनोजन का रोल बता दिया, HCl का रोल बता दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल बता दिया, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स का भी रोल बता दिया. उसके अलावा देयर इज अनदर एंजाइम कॉल्ड एज रेनिन, रेनिन विथ डबल N. Now renin is again as a proteolytic enzyme and it helps in digestion of milk protein present only in infants. Remember renin कहाँ पे present है? It is present in the gastric juice of infants. So if someone asks renin क्या करता है? It helps in digestion of milk protein in infants. Now small amount of lipases are also secreted by gastric gland, but they have very limited role. So that was entire digestion process that is happening in your stomach. To again summarize it, we have our stomach. This would be the last
part of digestion that we will be covering today, and remaining digestion and absorption we will be covering in your next lecture. So stomach, just to revise, क्या है? 3 टाइप के सेल्स हैं, म्यूकस, secreting cells, ऑक्सेंटिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स. ऑक्सेंटिक सेल्स ने क्या सेक्रीट किया? HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर. म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ने क्या सेक्रीट किया? म्यूकस. एंड पेप्टिक सेल्स ने क्या सेक्रीट किया? पेप्सिनोजेन. रोल ऑफ पेप्सिनोजेन बता दिया. HCl एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन. इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? अनीमिया होगा. कौन सा अनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा. रिमेंबर दिस टर्म, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा इंट्रिंसिक फैक्टर के एब्सेंस से, या नॉट जस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होगी तो भी आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा. म्यूकस का क्या रोल है? टू प्रोटेक्ट द एपिथेलियल लाइनिंग या म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक. With that, we finished the 30 minutes for today. Next video would be on digestion in small intestine and absorption, which is the main part of the digestion. Fine, digestion कहाँ होता है? Main small intestine में ही होता है. Finally, छोटे छोटे particles small intestine में ही होते हैं. So that we'll cover in next lecture. So I'll see you guys in my next lecture covering the digestion in small intestine and the remaining part of the chapter. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. And plus one more thing guys, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक मिल जाएगा. वो लिंक ज्वाइन कीजिए. एवरी डे आई शेयर MCQs ऑफ द lectures that we do over here. So that would be all for today guys. See you guys again tomorrow. Till then, all the best. Keep working hard. Do like and share this channel guys.